Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. This is Ajay Prakash Tiwari from Subrat Singh Children Academy, welcoming you to all once again to your official YouTube channel Biology at your fingers on the behalf of Subrat Singh Children Academy, Jaunpur. And as you know, at present your chapter number 3, human reproduction is running, and in previous videos we have completed about a very important topic, that was implantation. And as you know, after implantation there will be further development, and that condition will known as embryonic development. It means that we are today going to discuss about embryogenesis, where we will discuss formation of various germ layers such as ectoderm, mesoderm and endoderm, and how these layers got formed and which layer is formed first and followed by which one. And in today's class the topic is already written, pregnancy and embryonic development. So without wasting the time, I am starting your today's class topic, that is pregnancy and embryonic development. And as you know, if blastula got implanted in the endometrial lining of the uterus, that condition is now known as pregnancy. And if there is pregnancy, there will be further development, and that will be known as embryogenesis. And in embryogenesis there will be development of various tissues, organs and ultimately organ system that will make the body, and how ultimately these processes taken place. So immediately after implantation, the trophoblast cell of the blastocyst form a finger like projection that is known as chorionic villi. हम आपको पहले भी बता चुके हैं. And that chorionic villi penetrate the endometrium and enters into the maternal blood, and after entering the maternal blood it just receives the nutrients and transfer it to the developing embryo, and at the same time the endometrial lining surrounds completely the blastocyst. It means that now blastocyst got embedded into the endometrial lining, and ultimately uterine tissues as well as chorionic villi will form a particular structural and functional unit for the fetus or embryo, that is known as placenta, that will supply the nourishment as well as respiratory gases, as well as also it will eliminate the nitrogenous waste of the fetus. So how all these processes takes place, we are going to write. So यहाँ से आप देखेंगे immediately after implantation, trophoblast of blastocyst forms finger like outgrowth known as chorionic villi, and this chorionic villi, and it penetrates the endometrium, and reaches to the blood, or we can write maternal blood, and ultimately uterine tissues, जो कि यूट्रस के टिश्यूज हैं, यूटराइन टिश्यूज completely surrounds the fetus, or the term that will be embryo more convenient, surrounds the embryo, and it's completely got buried into the endometrium. यानी जैसे ही आपका जाइगोट जो कि डेवलप कर रहा था, डिवाइडिंग था, जिसका क्लीवेज हो रहा था, ब्लास्टुला स्टेज तक था, वो पहुंचा, इंडोमेट्रियल लाइनिंग से अटैच हुआ, ट्रोफोब्लास्ट सेल ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रोथ रिलीज किया, बनाया, और वो पेनिट्रेट करता हुआ इंडोमेट्रियम को मैटरनल ब्लड में पहुंच के नरिशमेंट प्रोवाइड किया, और उसी समय जो ब्लास्टुला था उसको कंप्लीटली यूटेराइन टिश्यूज के द्वारा घेर लिया गया, और वो इम्बेडेड हो गया उसी यूटेराइन कैविटी में या उसी यूटेराइन टिश्यूज में. अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, now chorionic villi and uterine tissue
and uterine tissue forms structural and functional unit between developing embryo and maternal body known as प्लासेंटा। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नोन एज प्लासेंटा, यानी जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, कंप्लीटली बरीड हुआ डेवलपिंग जाइगोट या एम्ब्रियो, उसी समय जो मैटरनल टिश्यूज थे या हम कह सकते हैं यूटेराइन टिश्यूज थे, और दूसरी जो कोरियोनिक विलाई थी, दिस वन इज कोरियोनिक विलाई, और ये यूटेराइन टिश्यू, ये दोनों ने मिलके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाया फीटस यानी जो डेवलप कर रहा है और मदर के बीच में, उसको हमने क्या कहा, प्लासेंटा। एंड नाउ दिस प्लासेंटा विल सप्लाई द नरिशमेंट दैट विल बी ग्लूकोज एंड व्हाटसोएवर दैट इज एसेंशियल फॉर द फीटस। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ जो फीटस के वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है, वो ला के फिर से मदर्स की बॉडी में या हम कह सकते हैं मदर्स के ब्लड में छोड़ देता है। ठीक, हम अल्टीमेटली प्लासेंटा के और भी फंक्शन देखेंगे इसके बाद। ठीक है, देन आफ्टर implantation there will be one more event. After implantation, inner cell mass जिसको आपने क्या बोला था बेटा, embryoblast, differentiate and forms three germ layers by gastrulation process। यानी ये बेटा गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, आपकी तीनों जो जर्म लेयर्स हैं वो बनती हैं, और फिर उन्हीं तीनों जर्म लेयर से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस से इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास था, एम्ब्रियोब्लास्ट थे, वो डिफ्रेंशिएट हो गई उनकी स्टेम सेल्स और तीनों जर्म लेयर्स को बना लिया। सबसे पहले जो बनती है दैट विल फॉर्म एज एंडोडर्म पहले बनेगी, देन आफ्टर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, and ultimately there will be formation of in the last mesoderm। यानी ये तीन जर्म लेयर्स जो है इनका सीक्वेंस है, कैसे ये बनती हैं। ये क्वेश्चन कई बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ वेरियस थ्री जर्म लेयर्स, कौन पहले बनती है कौन बाद में। सबसे पहले एंडोडर्म, देन आफ्टर एक्टोडर्म एंड देन आफ्टर मेसोडर्म। एंडोडर्म इज इनर मोस्ट लेयर, एक्टोडर्म इज आउटर मोस्ट लेयर एंड मेसोडर्म इज मिडल लेयर। एंड these layers will form क्या क्या बनाएंगी, वेरियस ऑर्गन्स, एंड यहाँ हम लिख सकते हैं सीधा सीधा फेटस, या आप इसको बॉडी, या इसको आप बेबी, या जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। स्ट्रिक्टली ये बेस्ड है आपकी एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन हमने चीज़ें आपको बताई हैं, और यही आपके सिलेबस के पार्ट भी हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा जो फेट ऑफ जर्म लेयर्स है, यानी फेट ऑफ जर्म लेयर्स में हम ये देखते हैं कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म और मेसोडर्म से कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन बनते हैं, वो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है। लेकिन हम अभी एक आपको वेब चार्ट प्रोवाइड करेंगे, और इस वेब चार्ट के माध्यम से आप ये एटलीस्ट इमेजिन कर पाओगे कि एक्टोडर्म ने क्या बनाया, मेसोडर्म ने क्या बनाया और इंडोडर्म ने क्या बनाया। चूंकि ये प्रोसेस बहुत डिटेल है, तो उसको अगर हम यहाँ पे बोर्ड पे बनाएंगे बेटा, तो टाइम लिमिट की वजह से वो टाइम ले लेगा। तो हम उसका एक वेब चार्ट आपको फटाफट अभी इसके बाद इमीडिएटली दिखाएंगे, और वो देखने के बाद आप इमेजिन कर पाओगे कौन से लेयर ने कौन से ऑर्गन को बनाया हुआ है। सो now you can consider the wave chart. Yes, all dear students, you can see from here various germ layers. Those are originating from the blastula that was got implanted in the endometrial lining of the uterus. You can see from here ectoderm forms the exoskeleton, मतलब जो बाहर की चीज़ें हैं। mesoderm form the various organs, and endoderm forms the lining of the various organs. You can see clear cut modification here. Here you can find out various germ layers. Those are ectoderm, mesoderm, endoderm and their fate. It means that
अब यहाँ से आप देख सकते हैं तीनों जर्म लेयर्स और ये क्या क्या बनाती हैं। जैसे यहाँ से आपने देखा जाइगोट जो कि ब्लास्टुला में कन्वर्ट हुआ। ब्लास्टुला में कन्वर्ट होने के बाद एक प्रोसेस और होता है जिसको हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद ये तीनों जर्म लेयर्स बनती हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद जो तीनों जर्म लेयर्स बनी, इक्टोडर्म या आउटर है, इससे आप देख सकते हैं जो बॉडी का आउटर सरफेस है जिसमें एपिडर्मल सेल्स हैं स्किन की, वो बनेंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, फिर मेसोडर्म और एंडोडर्म की लाइनिंग से आप बनने वाली चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने उन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में आपको दिखाया हुआ है। एक्टोडर्म से जैसा आप देख सकते हैं एपिडर्मिस, हेयर, नेल्स, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनर ईयर, लेंसेज ऑफ द आईज, ठीक है, ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं क्रैनियल, सेंसरी गैंग्लिया, नर्व्स, मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड, पिगमेंटेड सेल्स, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर अगर हम मेसोडर्म की बात करें तो स्कल और मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और फिर एंडोडर्म में आप वेरियस ऑर्गन्स को कंसीडर कर सकते हैं जो इनसे बने हुए हैं। अगर इनमें हम देखें जो मेन है बेटा, इसमें जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम उनसे रिलेटेड पार्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं लैरिंग्स हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकी हैं, लंग्स हैं, फायरिंग्स हैं, एज वेल एज थायराइड ग्लैंड हैं। और इसके साथ साथ जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिवर, पैनक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर और वजाना का वेस्टिब्यूल और यूरेथ्रा और इनकी ग्लैंड्स। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट आपके लिए यूरेथ्रा और उसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर, पैनक्रियाज, लिवर, पैराथायराइड ग्लैंड, टॉन्सिल्स, थायराइड ग्लैंड, फायरिंग्स, लंग्स, ब्रोंकाई, ये सभी एंडोडर्म से मिलकर बनती हैं। अगर हम मेसोडर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं बोन मैरो के साथ साथ एडिनल कॉर्टेक्स और स्प्लीन, ब्लड और लिम्फ सेल्स, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, डर्मिस है जो स्किन की। बट ध्यान रहे ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड का पार्ट नहीं है, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट हैं। Okay, so now we will discuss about the next unit, that is what, प्लासेंटा। अब हम प्लासेंटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं प्लासेंटा है क्या, इसका फंक्शन क्या है और कैसे ये इंडोक्राइन फंक्शन की तरह काम करता है, कैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कैसे गैसेस एक्सचेंज कराता है। सो ऑल दीज टॉपिक्स विल बी डिस्कस नाउ। सो फॉर द सेम आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दीज थिंग्स एंड देन आफ्टर वी विल इमीडिएटली स्टार्ट विद द प्लासेंटा। ओके देन स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी अबाउट द प्लासेंटा। Okay, so this question, that is what is placenta and what is the function of placenta, is most important for your board examination. बेटा ये कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जहाँ पे ये क्वेश्चन स्किप हुआ हो, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनने हैं और सुनने के बाद आपको सारी चीज़ें याद होने वाली है। तो व्हाट इज प्लासेंटा? प्लासेंटा इज मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड मदर्स बॉडी, यानी जो फीटस डेवलप कर रहा है यूट्रस में उसके बीच में और मदर के बॉडी के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं क्या? प्लासेंटा। और ये कनेक्शन मैकेनिकल होने के साथ साथ क्या है? फिजियोलॉजिकल भी है। कहने का मतलब ये प्रोटेक्शन के साथ साथ नरिशमेंट और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी मदद कर रहा है। द फुल्ली फॉर्म प्लासेंटा वेट इज नियरली ऑफ 1500 ग्राम्स एंड इट फॉर्म्स अबाउट द 11th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी प्लासेंटा पूरी तरह से 11वें हफ्ते तक प्रेगनेंसी के बन जाता है और ये पूरी तरह से बनने के बाद नियरली 500 ग्राम का होता है। तो कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। दिस इज व्हाट? डिस्क शेप, मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मैटरनल एंड फीटल पार्ट। अर्लियर मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बेटा नीट में पूछा गया था कि फीटल पार्ट ऑफ प्लासेंटा एंड मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा इज नोन एज, सो फीटल पार्ट ऑफ प्लासेंटा इज नोन एज कोरियन, उसको आप बोलोगे कोरियन, एंड मैटरनल पार्ट इज नोन एज डेसिडुआ। This is very important for your competitive examination. And here fetus connected to placenta by umbilical cord. Umbilical cord, ये बेटा एक umbilical cord एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फीटस को प्लासेंटा से कनेक्ट करता है और ये नियरली 50 से 60 सेंटीमीटर का होता है जब ये पूरी तरह से बन जाता है। ठीक, सो अम्बिलिकल कॉर्ड इज द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द फीटस एंड प्लासेंटा। सो दीज टू लाइंस, ये फीटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट, fetus connected to placenta by these two questions were the part of your NEET examination. So next point is here that fully formed placenta, fully formed placenta, ये fully formed placenta यानी कब तक बनता है? Around 11th weeks of pregnancy is about 500 grams. Okay, so this was all about the introduction of the placenta. अब हम यहाँ से देखेंगे actually what is the function of placenta. Function of placenta.
प्लासेंटा के फंक्शन क्या क्या है, तो एक वेब चार्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इसी के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। फर्स्ट, न्यूट्रिशन, यानी ये न्यूट्रिटिव होता है। कैसे? ये ग्लूकोज को सप्लाई करता है, सप्लाई द ग्लूकोज, किसको? फीटस को। इसके साथ साथ ये एक्सक्रीटरी भी होता है, एक्सक्रीटरी। क्यों? एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प कर रहा है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या सीधा सीधा हम गैसेस लिखते हैं, उसके बाद में ऑक्सीजन बताएंगे। इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करेगा। नेक्स्ट बेटा, पैसिव इम्यूनिटी, कौन सा काम करेगा? पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। कैसे पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा? यहाँ पे एक आप देखेंगे IgG, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो? इम्यूनोग्लोबिन्स। ये क्या करती हैं बेटा? ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाया गया क्या है? एक एंटीबॉडी है। तो जब ये क्या कर सकता है? इस प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो सीधी सी बात है कि जो हमारा फीटस यूट्रस के अंदर डेवलप कर रहा है वो अलग अलग डिजीज से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डिप्थीरिया, ठीक है। सो आपने देखा होगा अलग अलग वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। सो ऑल दीज वैक्सीन्स simply produce antibodies, and antibodies simply IgG, immunoglobulins, they can cross the placenta and may reach to the fetus and may provide the natural immunity to the fetus. Next we will discuss about the endocrine function, that is most important for your board examination. Endocrine function, what is the endocrine function of placenta? This question were framed various times. So endocrine function means that here placenta will release certain kind of hormones, and all those hormones will be in the form of, here just we are providing the wave chart, then we will discuss in very detail. So first one is HCG. What is the abbreviation of HCG? Human chorionic gonadotropins. Next, HPL, human placental lactogen. Then after estrogen, then after progesterone, and then after a very trace amount of thyroxine 2. यहाँ से बेटा स्पेस नहीं है, इधर लिख देते हैं 1 2 3 4. This was the hormone number 1 2 3 4 and fifth one I am writing here, thyroxine. Okay, so let's discuss the role of these hormones. The first, human chorionic gonadotropins. These are released by the trophoblast cells. यानी trophoblast कौन सी सेल्स थी? जब आपने ब्लास्टुला देखा था तो बाहर की तरफ जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बना रहे थे, दैट सेल वर द ट्रोफोब्लास्ट. तो ट्रोफोब्लास्ट क्या कर रही है? HCG को रिलीज कर रही है, एंड दिस HCG इज डिटेक्टेड इन द यूरिन एंड दैट इज अ इंडिकेटिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी टू. So by means of the detection of the HCG we can find out that a particular woman is pregnant or not. So HCG is detected in the urine by means of certain pregnancy kits, and these HCG hormones are responsible for the maintenance of the corpus luteum. So this HCG will maintain the corpus luteum, and it will also ensure that progesterone, that is pregnancy maintaining hormone, will be abundant. मतलब उसका concentration बना रहे, किसका? प्रोजेस्टेरॉन का, जो कि रिलीज किया जा रहा है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा. तो ये कौन इंश्योर कराता है? HCG कराता है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन. इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि लैक्टोजन है तो कहीं ना कहीं मिल्क के सिक्रेशन से रिलेटेड है. नहीं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट टू द फीटस. यानी ये इंश्योर करता है कि जो ग्लूकोज है मदर की बॉडी से एट लीस्ट वो पहुंच जाए फीटस तक. तो HPL ensuring the supply of the nutrients, and remember this HPL has the anti-insulin property. यानी इंसुलिन जो काम करता है, लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, तो उसके ये एंटागोनिस्टिक है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है. क्योंकि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ना, तभी तो अधिक से अधिक अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट है वो पहुंच पाएंगे फीटस तक. तो सीधी सी बात है, HPL क्या है बेटा? HPL क्या है? एंटी इंसुलिन हार्मोन है, जो कि इंश्योर करता है कि सप्लाई होती रहे न्यूट्रिएंट्स की, कहाँ? मदर के ब्लड से फीटस तक. नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वेरी ट्रेस अमाउंट ऑफ हार्मोन्स. दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड ओनली इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी. अगर प्रेगनेंसी होती है तभी प्लासेंटा इन चीज़ों को रिलीज करेगा. अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो एस्ट्रोजन, आपको मालूम है, थीका सेल्स, और वो भी थीका इंटरना,
और प्रोजेस्टेरॉन आपको मालूम है अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये रिलीज ही नहीं किया जाएगा. सो आफ्टर प्रेगनेंसी वेरी ट्रेस अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज थायरॉक्सिन, एंड in certain books it is also written as relaxins are also released, and all these hormones together help to maintain the pregnancy. So let's quickly recap the function of the placenta. The function of number 1, that is what? Nutrition, supplying the glucose to the fetus or supplying the nourishment to the fetus. Next, excretion, removal of the nitrogenous waste, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी जो आपकी रिस्पिरेटरी गैसेस हैं उनको सप्लाई करने का काम. पैसिव इम्यूनिटी, सर्टेन तरह के जो आपके इम्यूनोग्लोबिन्स हैं या एंटीबॉडीज़ हैं या ड्रग्स हैं वो भी पहुंच सकते हैं. अगला इंडोक्राइन फंक्शन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है. कहने का मतलब ये अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकालता है जो कि काम होता है इंडोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन निकालना, लेकिन यहाँ पे कौन निकाल रहा है? प्लासेंटा. इस वजह से हम कहते हैं इंडोक्राइन फंक्शन. इंडोक्राइन फंक्शन क्यों है प्लासेंटा का? क्योंकि हार्मोन रिलीज कर रहा है. हार्मोन रिलीज करने का काम इंडोक्राइन ग्लैंड्स का होता है, लेकिन ये भी एज इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, लेकिन ये टेम्पोररी है बेटा, क्योंकि प्रेगनेंसी होगी तभी ये बनेगा और तभी हार्मोन रिलीज होगा. अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ना तो ये बनेगा ना तो हार्मोन रिलीज होने वाला है. तो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स ये डिटेक्ट किए जाते हैं यूरिन में प्रेगनेंसी के समय, और इसका काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कंसंट्रेशन को बनाए रखना. HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द नरिशमेंट, यानी नरिशमेंट सप्लाई होता रहे ये इंश्योर करता है. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है. दैट्स वाई दिस हैज द एंटी इंसुलिन प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. आपको मालूम है कि फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. थायरॉक्सिन जो कि मेटाबॉलिज्म जो प्रेगनेंसी के समय है, चूँकि नरिशमेंट प्रोवाइड हो रहा है किसको? फीटस को भी, तो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म फास्ट होनी चाहिए फीमेल्स की. तो थायरॉक्सिन इंश्योर कर देता है कि जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, और इसीलिए ये एक्स्ट्रा अमाउंट में उस समय रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? प्लासेंटा के द्वारा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द function of the placenta. So this question, that is what is placenta and what is the function of placenta, आपके लिए important है. इसके अलावा जैसा मैंने बताया द A, B, C and D और ये E. अगर हम देखें एक और फंक्शन इसका F, ये बेटा एक बैरियर की तरह भी काम करता है. ये क्या काम करता है? बैरियर की तरह. मीन्स दैट इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एंटीजेंस. अब वो एंटीजन चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोन्स हो, उनकी एंट्री को ये ब्लॉक करने का काम करता है. बट आपको जैसा मालूम है कि एक्सेप्शन हर जगह है. सो देयर आर सर्टेन बैक्टीरियंस दोज मे क्रॉस द प्लासेंटा, देयर आर सर्टेन वायरसेस दोज आर ऑल्सो एबल टू क्रॉस द प्लासेंटा. तो अगर हम देखें कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि प्लासेंटा को क्या करते हैं? क्रॉस कर सकते हैं. तो आपको मालूम होगा एक डिजीज होती है सिफिलिस. तो बैक्टीरिया ऑफ द सिफिलिस कॉजिंग disease may cross the placenta and HIV virus also may cross the placenta. तो आपको ये रिमेंबर रखना है, याद रखना है कौन कौन से बैक्टीरिया में अगर हम देखें, और दूसरा अगर हम देखें वायरस, सिफिलिस कॉजिंग बैक्टीरिया, सिफिलिस कॉजिंग बैक्टीरिया में क्रॉस. और यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं HIV वायरस तो क्रॉस ही कर सकता है. वायरस ऑफ मेजल्स, स्मॉल पॉक्स और रूबेला वायरस का भी एक प्रॉपर्टी है कि वो किसको? इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है. ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस, जैसे यहाँ पे आपकी सिफिलिस कॉजिंग, HIV कॉजिंग, मेजल्स कॉजिंग, स्मॉल पॉक्स एंड रूबेला कॉजिंग, ऑल दीज एंटीजेंस आर नोन एज ट्रांसप्लासेंटल सब्सटेंसेस. इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लासेंटल substances. It means that the substance that can cross the placenta are known as transplacental substances. इसके अलावा कुछ ऐसे substances जैसे निकोटीन ये भी बेटा प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है. मरकरी ये भी प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है. इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए जब प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि आप स्मोक करोगे तो सिगरेट या तंबाकू चेविंग कर रहे हो तो उसमें निकोटीन होता है, तो जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करता हुआ फीटस के पास पहुंच जाएगा. ठीक है, मरकरी जो है, मरकरी भी प्लासेंटा को क्रॉस करते हुए पहुंच जाती है फीटस के पास, जो कि बहुत ही फैटल हो सकती है. तो हमने ये F बताया. अगर हम एक फंक्शन और देखें G, तो इसका काम होता है बेटा ट्रांसपोर्ट का. और ये ट्रांसपोर्ट किसको किसको कर सकता है? ड्रग्स को कर सकता है. किसको कर सकता है? ड्रग्स को. इसी वजह से प्रेगनेंसी के समय बहुत कम दवाएं दी जाती हैं. इट कैन सप्लाई द ड्रग्स
वेरियस काइंड ऑफ द ड्रग्स जो भी आप मेडिसिन के रूप में लेते हैं या किसी और फॉर्म में लेते हैं। इसके साथ साथ ये एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है और ग्लूकोज का तो ये ट्रांसपोर्टेशन करता ही है। सो ये क्या है, न्यूट्रिटिव है, यानी नरिशमेंट भी प्रोवाइड करा सकता है, ये एक्सक्रीटरी भी है, रिमूवल भी करता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, ट्रांसपोर्टरी भी है और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ ड्रग्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है, एंडोक्राइन फंक्शन में है। तो ये सारी चीज़ें थी प्लासेंटा के बारे में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम गारंटी है। सो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और लास्ट में हम देखेंगे बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा। ओके तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट पहले लिखा, सपोर्टिव होती है, प्रोटेक्टिव होती है और डेवलप्स इन एमनियोट्स। कहाँ डेवलप होती है? डेवलप्स इन एमनियोट्स। और बेटा एमनियोट्स में कौन कौन है? एमनियोट्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं मैमल्स, मैमल्स के साथ साथ बर्ड्स, बर्ड्स के साथ साथ रेप्टाइल्स, ठीक है। और ये होती कितने की हैं? 4 तरह की होती है, 4 टाइप्स। कौन कौन सी? amnion, amnion, after this there will be chorion, after that chorion there will be third one is that will be yolk sac, and after yolk sac there is what? allantois. So all these are 4 extra embryonic membrane. क्वेश्चन ये पूछा गया कि how these extra embryonic membrane got formed, तो ये बनती हैं ट्रोफोब्लास्ट से। किससे बनती हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट आपको मैंने बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट का जो टॉप पोर्शन होता है वो होता है। अब बेटा जो एमनियन होता है इसके पास होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड, यानी जो एमनियन मेम्ब्रेन है ये फीटस को घेरने वाले मेम्ब्रेन है, ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप हुई है। इसके पास क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब ये कैसे काम कर रही है? एक्ट एज प्राइवेट एक्वेरियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि द मेम्ब्रेन दैट एक्ट एज प्राइवेट एक्वेरियम, नेम ऑफ दैट मेम्ब्रेन इज एमनियन। है क्या ये बेटा? ये इंसुलेटर है, मतलब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ ये क्या करती है? शॉक एब्जॉर्बर है बेटा। ये क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर मतलब जो फीटस अंदर डेवलप कर रहा है उसको कोई शॉक ना लगे, उसके लिए कौन से मेम्ब्रेन है? एमनियन। अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो आप सभी को मालूम है कि अगर ये हमारा है फीटस, इफ दिस वन इज व्हाट? फीटस, तो मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं? ये फीटस है, इसको हम लिख सकते हैं दिस वन इज फीटस। अब इस फीटस से आपको देखने को मिलेंगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये है बेटा आपकी एक मेम्ब्रेन, दूसरी मेम्ब्रेन आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, ये है एलेंटवाइस। कौन सी है? एलेंटवाइस। ये कौन सी है? यॉर्क सैक। एंड इसके बाहर एक मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, दिस मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं क्या? एमनियन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? दिस वन इज नोन एज एमनियन, ठीक है। ये हटा देते हैं फीटस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से। ये है क्या? फीटस। अब इस एमनियन में क्या भरा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या भरा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड। और ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या कर रहा है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। और इन सभी को घेरने का काम एक लास्ट मेम्ब्रेन करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरियन। यहाँ से हम दिखाते हैं आपको एक लास्ट मेम्ब्रेन, इसको भी थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं बेटा। ये है क्या? एलेंटवाइस। अब इन सभी को जो सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन है दिस वन, और ये जो है आपको देखने को मिल रही हैं, इनको हम बोलते हैं क्या? ये है कोरियन और ये है कोरियोनिक विलाई। और ये जो लेयर है ये कौन सी है? कोरियन। तो यहाँ से आप देखें, सबसे बाहर दिख रही है आपको कोरियन, कोरियन के बाद आपको क्या दिख रही है? ये एमनियन, एमनियन के बाद आपको क्या दिख रहा है? यॉर्क सैक, यॉर्क सैक के बाद आपको क्या दिख रहा है? एलेंटवाइस। तो ये सभी की सभी क्या हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो उसमें से पहला हमने देखा एमनियन, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ है, इसी मेम्ब्रेन में भरा हुआ है, शॉक एब्जॉर्बर है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से हम देखते हैं कोरियन का क्या फंक्शन होता है। ये क्या करती है बेटा? इट फॉर्म्स फीटल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा, फीटल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा। ये जो फीटल पोर्शन है प्लासेंटा का उसको बनाती है। कौन सी है ये?
आउटर मोस्ट लेयर है और इसके साथ साथ बेटा जो चिकन वगैरह होते हैं उसमें ये रिस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? रिस्पायरेशन में, जो कि आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें। चिकन या हैन वगैरह जो है इसमें रिस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगी, लेकिन जो हम लोग हैं उसमें ये फीटल पोर्शन बनाने का काम करती हैं। यॉक सैक क्या है? यॉक सैक जो है बेटा ये स्टोर करता है किसको? न्यूट्रिएंट को। यॉक सैक स्टोर करने का काम करता है किसको? न्यूट्रिएंट को। हम लोगों में हाईली रिड्यूस्ड होता है, लेकिन ये मॉडिफाई कर जाता है और बनाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यॉक सैक मॉडिफाइड टू फॉर्म अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि क्या करता है? प्लासेंटा को फीटस से अटैच करने का काम करता है। अगला देखते हैं एलेंटोइस। ये आपका जो एलेंटोइस है बेटा ये कंट्रीब्यूट करता है आर्टरीज को और वीन्स को। किसके? अम्बिलिकल कॉर्ड के। यानी जो आर्टरीज और वीन्स हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में, वो किसकी वजह से हैं? इसी एलेंटोइस की वजह से हैं। तो इसका मतलब अगर आर्टरीज और वीन्स इसी की वजह से है तो ये न्यूट्रिटिव होगा। न्यूट्रिटिव होने के साथ साथ एक्सक्रीटरी भी होगा। एक्सक्रीटरी होने के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट काम ये करता है, वो काम इसका है रिस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये न्यूट्रिटिव है, एक्सक्रीटरी है, रिस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है आर्टरीज और वीन्स को। तो ये टोटल आपकी थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में आपके लिए अम्नियन और कोरियन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप देखेंगे एलेंटोइस। हैं तो 4, आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, सारे मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है। ये आपका फीटस था, इसको बाहर जो घेर रही थी वो एमनियन थी, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड था। सबसे बाहर जो थी बेटा कोरियन, जिसके पास कोरियोनिक विलाई भी थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड रिमेंबर, इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज, यू कैन लीव इन योर कमेंट सेक्शन or you can just WhatsApp your queries on this number, that is 9140558523। आप इस नंबर पे WhatsApp भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, जो कि रिजॉल्व की जाएंगी। सो हैव ए गुड डे अहेड एंड कीप स्माइलिंग।